हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स के एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि बॉडी में रोटेशनल मोशन भी हो रही है और ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रही है। ऐसे केसेस में हम लोग एक्सेलरेशन को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ये आज सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है। अ फोर्स F acts tangentially at the highest point of a sphere of mass m kept on a rough horizontal plane. If the sphere rolls without slipping, find the acceleration of the center of the sphere. जैसा आप देख सकते हैं, हमारे पास एक स्फीयर है of mass m which is subjected to a force big F, which is acting tangentially at the highest point of the sphere. Now the condition is that the sphere rolls without slipping. Sphere rolls without slipping. Now we need to find the acceleration of the center of the sphere. तो फ्रेंड्स, चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ अगर आप इस सिस्टम को देखें तो इस फोर्स की वजह से इसमें मूवमेंट जो होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। मैं फिर से दिखाना चाहूँगा आपको। इसमें जो मूवमेंट हो रही है, आप देख सकते हैं कंबाइंड मोशन हो रही है, विच मीन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। जब आप फोर्स F लगा रहे हैं टेंजेंशियली एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर, देन द स्फीयर स्टार्ट्स टू रोल, विच मीन्स इट हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल बोथ। सो वी नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो assume that the mass of the sphere is m and the radius is suppose r. This is the center of mass O and the radius is suppose r. We need to figure out what is the acceleration of the center of the sphere, assuming that the acceleration of the center of the sphere is ACM, acceleration of the center of mass. Now as you can see, it has a translational motion as well as rotational motion. So we need to consider its angular acceleration also, because it is rotating in the clockwise direction. So assume कर लें कि भाई एक angular acceleration इसमें अल्फा प्रोड्यूस हो रही है due to the application of the force. As the question says that sphere of mass m is kept on a रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसका मतलब है ये जो प्लेन है ये रफ है, तो फ्रिक्शन काम करेगी। नाउ फ्रिक्शन फोर्स की आप डायरेक्शन को आप क्या लें। नाउ एस्यूम करिए कि भाई फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन अगर इसमें नहीं होगी तो ये स्फीयर रोल नहीं करेगा। तो अगर जब आप फोर्स लगाते हैं, ये एफ फोर्स आप अप्लाई करते हैं टेंजेंशियली एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैज़ द टेंडेंसी टू स्लिप टुवर्ड्स लेफ्ट. Point of contact has the tendency to slip towards left, and you know that frictional force always opposes the relative motion between the point of contact and the surface. So it means the frictional force will act in the forward direction. मान लें कि frictional force लग रहा है small f. Now इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर आपको, तो इसमें ट्रांसलेशनल मोशन के लिए भी आपको इक्वेशन लिखना होगा, साथ ही साथ रोटेशनल मोशन के लिए भी इक्वेशन लिखना होगा, बिकॉज दिस सिस्टम हैज़ combined motion which consists of translational motion as well as rotational motion. So for translational motion or for linear motion, what is the equation of force for linear motion or translational motion? Now net force acting in the forward direction or in the direction of acceleration is F, net force is suppose F net equal to, we can write mass times acceleration of center of mass. Now net force in the direction of acceleration of the center of mass is towards right, and what are the forces acting towards right? Capital F and small f. So F plus F is equals to mass times acceleration of center of mass.
Assume that this is equation number 1. Small f जो frictional force है वो तो हमें पता नहीं है. So we need to write the equation of torque also for rotational motion. So for rotational motion about the center, देखिए टॉर्क अप्लाई करने के दो तरीके हैं. ऑलवेज अप्लाई द टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास. तो टॉर्क हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट में आप अप्लाई करें. दूसरा एक पॉइंट है जिसके अबाउट में आप अप्लाई कर सकते हैं. वो पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट में हमारी जो बॉडी है वो रोल कर रही है. तो पॉइंट अबाउट विच द बॉडी इज़ रोलिंग. तो बॉडी रोल कर रही है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट में, ये जो हमारा बॉटम पॉइंट है. तो हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट में टॉर्क अप्लाई करेंगे. फॉर रोटेशनल मोशन torque about the center of mass is equals to moment of inertia about the center of mass multiplied by angular acceleration. We are finding the net torque about the center of mass. As you can see, देखिए यहाँ से जो जिस पॉइंट पे टॉपमोस्ट पॉइंट पे कैपिटल एफ फोर्स लग रही है, वहाँ से परपेंडिकुलर आप डिस्टेंस देखें अबाउट ओ, तो वो है रेडियस के बराबर. और अगर फ्रिक्शनल फोर्स जो बॉटम पॉइंट पे लग रही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वहाँ से अगर आप सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, देन दैट इज आल्सो इक्वल टू द रेडियस. टॉर्क ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स एफ इज एफ इंटू आर क्लॉकवाइज, एंड टॉर्क ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स which is acting at the point of contact is F into capital R with minus sign. The reason is the torque due to the applied force F is clockwise and torque due to the frictional force is anti-clockwise about the center of mass. So the net torque is Fr minus Fr is equals to ICM into alpha. Now moment of inertia of the sphere about the center of mass is 2 by 5 mr square. Now this is F minus small f equal to 2 by 5 m alpha r. Suppose this is equation number 2. Now friends, आप देख सकते हैं we have two equation number 1 and equation number 2. Now we need to find the acceleration of center of mass, but there are several unknowns, small f, alpha and acceleration of center of mass. We can get the third equation if we write the condition of rolling. Now according to question, the sphere rolls without slipping. तो चलिए देखते हैं अगर आप रोलिंग की कंडीशन अप्लाई करें तो क्या सिचुएशन होगा. Condition for rolling. So condition for rolling is acceleration of the center of mass is equals to alpha into r. Because point of contact is at rest with respect to the surface, so acceleration of point of contact is ACM minus alpha r. Alpha is the angular acceleration. Now point of contact is at rest, so ACM minus alpha r is equal to 0. Therefore ACM is equals to alpha r. Suppose this is equation number 3. Equation number 2 and 3 we get F minus F is equals to 2 by 5 m ACM, because ACM is alpha r. This is suppose equation number 4. Now if you combine equation number 1 and 4, so adding equation number 1 and 4, number 1 and 4, we get 2f MACM plus 2 over 5 MACM, or 2f is equals to
7 MACM upon 5, therefore acceleration of center of mass is 10 F upon 7m. So this is the acceleration of the center of mass of the sphere. Now देखिए इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन फोर्स के बारे में कुछ लिखा नहीं गया था, इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन नहीं दिया गया था, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन को एस्यूम करना किस डायरेक्शन में लगेगा ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है। प्रॉब्लम को देखते हुए, सिस्टम को विजुलाइज करते हुए आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन को एस्यूम करना है। बट एक अच्छी बात यह है कि अगर आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर स्लिप करेगी, लेफ़्ट की तरफ स्लिप करेगी कि राइट की तरफ स्लिप करेगी, तो आप फ्रिक्शन की डायरेक्शन कोई भी एस्यूम कर सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में आप फ्रिक्शन को ले सकते हैं, लेफ़्ट भी ले सकते हैं, राइट भी ले सकते हैं, इतनी आज़ादी है आपको। इससे कोई फ़र्क आपके मैग्नीट्यूड में नहीं पड़ेगा। बस डिफरेंस ये आएगा कि अगर आपने गलत डायरेक्शन एस्यूम किया होगा तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप एक्सेलरेशन की वैल्यू आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 4 में। यहाँ से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट कर दें, सो यू विल गेट द फ्रिक्शनल फोर्स। सो F माइनस F विल बी इक्वल टू 2/5m. Acceleration of center of mass is 10 F upon 7m. So this is equals to 4F upon 7. So F minus 4F upon 7 is equals to small f. Therefore small f is equals to 3F upon 7. 3F upon 7. This is the फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसी क्वेश्चन में ये फ्रिक्शनल फोर्स भी पूछा जा सकता था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है, पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है। इट मीन्स द डायरेक्शन दैट वी हैव एस्यूम्ड इज करेक्ट। नाउ इंस्टेड ऑफ टेकिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स राइट, अगर मान लीजिए आपने फ्रिक्शनल फोर्स को लेफ़्ट की तरफ ले लिया तो डिफरेंस ये आएगा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी दैट विल बी सेम, बट ये नेगेटिव साइन के साथ आपको आंसर मिलेगा। नेगेटिव साइन से ही आप समझ सकते हैं कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स आपने डायरेक्शन जो है फ्रिक्शनल फोर्स का आपने गलत ले लिया है। अगर मान लिया जाए कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स राइट, अगर मैं इस फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन को लेफ़्ट की तरफ ले लेता तो क्या फ़र्क आएगा, इसे आप अभी भूल जाएं, लेफ़्ट की तरफ ले लेता। सो इक्वेशन जो हमारा बनेगा आप देख सकते हैं, इक्वेशन जो हमारा बनेगा, पहला इक्वेशन तो होगा F माइनस स्मॉल f इज इक्वल्स टू MACM, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन जो बनेगी, टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास दैट विल बी इक्वल टू ICM इंटू अल्फ़ा, एंड टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज, आप देख सकते हैं कि जो अप्लाइड फोर्सेस के द्वारा जो टॉर्क लगेगी वो क्लॉकवाइज लगेगी अबाउट द सेंटर ऑफ मास O FR, और फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा भी टॉर्क, सिंस वी हैव अज्यूम्ड दैट इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा भी जो टॉर्क होगी दैट विल बी ऑल्सो क्लॉकवाइज। सो FR प्लस स्मॉल FR इज इक्वल्स टू 2/5 mr स्क्वायर अल्फ़ा। सो F प्लस F इज इक्वल्स टू 2/5 m अल्फ़ा, which is equals to 2/5 MACM. Since ACM is equals to, we know that ACM is equals to alpha r. So from 1 and 2 अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो आप देख सकते हैं, so from equations 1 and 2 we get 2F is equals to minus F and plus F cancels each other, so we get 7 upon 5 MACM. So ACM is 10F upon 7m. This is the answer. आंसर में देखिए कोई फ़र्क नहीं आया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज सेम। सो मैंने इसलिए कहा था आपको फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन आप अगर आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे, आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर स्लिप करेगी, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ,
तो आप कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर लें, दिस विल हार्डली मेक एनी डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड। बट जो फ़र्क आएगा अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू फाइंड करें, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो आंसर आएगी वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी। एज्यूम कर लीजिए इस इक्वेशन नंबर 3, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 वी गेट, क्या मिल रहा देखिए आपको, f प्लस एफ इज इक्वल्स टू 2/5m इंटू 10f अपॉन 7m, so this is 4f upon 7 f plus f, therefore f is equals to 4f upon 7 minus f, which is equals to minus 3f by 7. so frictional force की जो वैल्यू आई आप देख सकते हैं, यू कैन कंपेयर दिस टू वैल्यूज। जो फ़र्क आया यहाँ नेगेटिव साइन का आया, इट मीन्स द डायरेक्शन दैट वी हैव अज्यूम्ड इज रॉन्ग। मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज सेम, बट जो डायरेक्शन आपको मिल रही है वो बता रही, जो साइन आपको मिल रहा है, नेगेटिव साइन जो आ रहा है, इससे आपको ये पता चल रहा है कि दैट जो डायरेक्शन आपने लिया है वो गलत है। सो दिस इज़ वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इसमें आपने देखा कि आपको दो चीज़ें पता चली, हाउ टू फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। नाउ इसी क्वेश्चन को अगर मैं, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलवेज कैलकुलेट द टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास, नाउ इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास, इफ यू फाइंड द टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और द पॉइंट अबाउट विच द बॉडी इज रोलिंग, तो भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए उसे देखते हैं हम लोग। So this was the first method. Now we can solve this by taking the torque about the point of contact or the point about which the body is rolling. यहाँ पे आपको ये भी आप काम कर सकते हैं कि जिस पॉइंट के अबाउट में बॉडी रोल कर रही है उस पॉइंट के अबाउट में आप टॉर्क को फिगर आउट करें। Now second method of solving this question. Now guys again फिर से आप देख सकते हैं एनिमेशन इसका, किस प्रकार से ये सिस्टम मूव कर रहा है, ये बॉडी मूव कर रही है। व्हेन फोर्स F इज़ अप्लाइड, देन इसमें कम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन हो रहा है। दिस इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर। मान लिया जाए R इज़ द रेडियस, M इज़ द मास ऑफ द स्फीयर, एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स right, because point of contact has the tendency to slip towards left due to the application of this force capital F. मान लीजिए कि acceleration of center of mass is ACM, angular acceleration alpha is produced on it. Now the first equation remains the same. अगर आप translation के लिए equation लिखे, translation के लिए, null motion के लिए अगर आप equation लिखें, so it remains the same. F plus F net force is equals to mass times acceleration of center of mass, इक्वेशन नंबर 1. फॉर रोटेशनल के लिए अगर आप रोटेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया पिछले मेथड में, ये सेकंड मेथड है हमारा। फर्स्ट मेथड में मैंने आपको बताया कि यू कैन टेक द टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास। नाउ यहाँ पे आपको एक फ्रीडम है कि आप टॉर्क पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट में भी ले सकते हैं। मान लीजिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज P, इफ़ यू कैलकुलेट द टॉर्क अबाउट द नेट टॉर्क अबाउट द point of contact, net torque about the point of contact, then it will be equal to moment of inertia of the sphere about the point of contact about the point P multiplied by alpha. ये ध्यान आपको रखना है कि अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट में टॉर्क लेंगे तो टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट में लेनी है। When you are finding the torque about the point of contact about the point about which the body is rolling, then find the moment of inertia about that point. Now torque about the point P will be F into 2R, बिकॉज 2R इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिस पॉइंट पे कैपिटल F फोर्स लग रही है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, वहाँ से पॉइंट P की जो दूरी है वो 2R है। फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा टॉर्क 0 हो जाएगा बिकॉज वो फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग एट द सेम पॉइंट P, सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ भी नहीं है यहाँ पे। नाउ दिस इज इक्वल्स टू IP इंटू अल्फा। नाउ आपको अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम पता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट पॉइंट P विल बी 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। सो 2Fr इज इक्वल्स टू
7/5 m r square alpha. F is equals to 7/5 m alpha r, which is equation 2. Now applying the condition of rolling without slipping, so ACM is equals to alpha r. ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है. So from equations 2 and 3 we get 2f is equals to 7/5 m ACM, which is equation number 4. ACM is equals to 10f upon 7m. तो देखा आपने कि जो एक्सेलरेशन है वो सेम आ रही है. आपने टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट में लिया. इन दैट केस ऑल्सो एक्सेलरेशन वाज 10f upon 7m. और जब हम लोगों ने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट में लिया, जिस पॉइंट के अबाउट में बॉडी रोलिंग हो रही है, उस केस में भी हमारा जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो सेम आ रहा है, विच इज़ 10f upon 7m. तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मेरे फिजिक्स वीडियो से रिलेटेड मिलती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.